Hello, good morning, student. Today we are going to discuss about the regulation of the breathing. In previous lecture, we were also discuss about the transportation of the gases like O2 gases and CO2 respiratory gases. We will discuss about the how to control, how to regulate of the higher breathing or higher use of the oxygen and higher formation of the carbon dioxide in our body, how to mechanism we will control of the our breathing, our respiration. So there are two type of mechanism found in our body for the regulation of the breathing or regulation of the respiration. First is a neural control, second is a chemical control. For the neural control, here is the situation of the regulating factor, regulating center in the brain. So we can say that the regulating center of the breathing found in our brain. Which part of the brain? The hind brain have the breathing regulating center. What type of hind brain? So there are three type of hind brain. First is pons bag, second is medulla bag, and third is cerebellum bag. The pons part or medulla part have the regulating center or breathing regulating center. So what is the name of the regulating center? That is called rhythmic center and apneustic center and pneumotaxic center. All centers are found in the hind brain. The pneumotaxic center and the rhythmic center and apneustic center. There are three type of centers present in the hind brain. In case of out of three center, the medulla rhythmic center found in the medullary region of the hind brain. Then there are two type of center, apneustic center and second is pneumotaxic center. Both are found in the pons varolai part of the brain. तो अब आइए बच्चों हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये सेंटर हमारा कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं. तो इन सब बातों का आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे. तो हमारा टॉपिक है द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन. देयर आर टू मैकेनिज्म have for the regulation of the respiration. First is neural regulation, then second is chemical regulation. Neural regulation meaning यहाँ पर that is control of by the brain, control by the medulla center, medulla part of the brain, control by the pons part of the brain, and signal that are signal produced in the neural region, in the brain region, and that type of signal come into the intercostal muscles and diaphragm muscles or radial muscles and abdominal muscles according to breathing. When we are doing forceful breathing, तो यहाँ abdominal जो muscles है वो यहाँ work करती है. Then the chemical regulation also divided in two type of the regulation. First is central chemical regulation. Then second is a peripheral chemical regulation. तो peripheral regulation और central regulation का मीनिंग क्या है कि सेंट्रल रेगुलेशन का मीनिंग यहाँ पर है कि सम जो सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेंसिटिव पार्ट ऑफ द गैसेज, रेस्पिरेटरी गैसेज आर फाउंड इन द ब्रेन रीजन और मेडुलरी रीजन. दैट टाइप ऑफ center control known as the central chemical region, central chemical regulation. That type of region sensitive to the hydrogen ion and higher amount of the कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसके लिए ये यहाँ पर सेंसिटिव होती है. ब्रेन के मेडुलरी पार्ट के अंदर सेंट्रल केमिकल रीजन है, कंट्रोल है, वो कहां पर होते हैं? तो आपका आंसर आएगा ब्रेन के अंदर बच्चों मेडुलरी जो रीजन है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं. पेरिफेरल रीजन के अंदर आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर देयर आर टू टाइप ऑफ रीजन
found for the peripheral regulation of the breathing. First is aortic body, aortic body, and second is a carotid body. तो कैरोटिड बॉडी और एओर्टिड बॉडी इसकी डिटेल हम बच्चों कर चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो ये दोनों बॉडीज है वो रेगुलेट करती है क्या, यहाँ पर ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रही है। एओर्टिक बॉडी और कैरोटिक बॉडी बोथ आर सेंसिटिव टू दी हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिए यहाँ ऑक्सीजन का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल नहीं होता है। तो जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके हैं, हाइड्रोजन के रिसेप्टर है और कार्बन डाइऑक्साइड के रिसेप्टर है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो रेगुलेट करते हैं केमिकली। तो वन बाई वन हम यहाँ पर डिटेल करेंगे। फर्स्ट जो न्यूरल रेगुलेशन की बात करें कि न्यूरल रेगुलेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूरल रेगुलेशन है हम यहाँ 3 सेंटर बता सकते हैं कि 3 सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। न्यूरल रेगुलेशन और नर्वस कंट्रोल भी इसे हम कह सकते हैं। द रेस्पिरेटरी रिदम इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड नर्वस कंट्रोल और न्यूरल रेगुलेशन। A number of group of neuron located bilaterally in the medulla oblongata control the respiration. These are called respiratory center. Where is present of the respiratory center? It is very important question. यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। कहाँ होते हैं, तो मोस्ट ऑफ अपन कह सकते हैं मेजर जो रेगुलेटरी सेंटर है केमिकली और न्यूरल अपन देखें तो मेडुलरी सेंटर के अंदर, मेडुलरी रिदमिक सेंटर है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस प्रकार से देयर आर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू दी 3 एरियाज। कौन से एरिया, हम न्यूरल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो ब्रेन के अंदर 3 एरियाज यहाँ पर प्रेजेंट है। फर्स्ट इज मेडुलरी रिदमिक एरिया, ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर फ्रेम किया जाता है। नीट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी की लाइन भी है ये। अब क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ सकते हैं आपसे, क्या फ्रेम कर सकते हैं, वेयर इज प्रेजेंट, वेयर इज सिचुएटेड ऑफ द मेडुलरी रिदमिक एरिया। तो द मेडुलरी रिदमिक एरिया इट इज सिचुएटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये फ्रेम किया जा सकता है कि मेडुलरी रिदम रीजन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो नाम से ही बच्चों हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेडुलरी से क्या हुआ, मेडुला रीजन के अंदर मेडुलरी सेंटर उपस्थित होते हैं। देन सेकंड इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर बच्चों कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूमोटैक्सिक जो एरिया इट इज ए कंट्रोल ऑफ द ब्रीदिंग, इट इज फाउंड इन द पोन्स वेरोलाई। पूरा नाम इसका पोन्स है, पोन्स वेरोलाई, इट इज ए पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। देन थर्ड एरिया ऑफ द रेगुलेटिंग सेंटर एपनिस्टिक एरिया, इट इज फाउंड इन द पोन्स वेरोलाई ऑल्सो। तो दोनों आप देखिएगा रेगुलेशन के लिए 2 जो रीजन है वो पोन्स के अंदर उपस्थित है और एक रीजन कहां पर उपस्थित है, मेडुला रीजन है, मेडुला पार्ट है ब्रेन का वहां पर प्रेजेंट है। द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज प्रेजेंट इन द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला। अब यहाँ पर भी मेडुलरी जो रिदमी सेंटर है यहाँ पर 2 ग्रुप पाए जाते हैं इसके, एक डोर्सल डीआरजी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, एक वीआरजी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। देयर आर 2 टाइप ऑफ respiratory center found in the medullary region, DRG and second is VRG. DRG present dorsal portion of the medulla oblongata, when the ventral portion of the medulla oblongata present which type of center, तो VRG ventral respiratory group है। तो DRG और VRG 2 टाइप के यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट है। DRG को आप इंस्पायरेटरी ग्रुप भी बोलते हैं, इंस्पायरेटरी ग्रुप भी बोलते हैं, और वीआरजी को एक्सपायरेटरी ग्रुप भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो डीआरजी ऑल्सो नोन एज आईजी एंड वीआरजी ऑल्सो नोन एज ईजी, एक्सपायरेटरी ग्रुप भी कह सकते हैं। देन यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम के द्वारा बच्चों आप बता सकते हो कि ये हमारा एक मेडुला पार्ट है और मेडुला पार्ट है, इसके अंदर एक पोन्स पार्ट है। 2 टाइप के सेंटर है जिसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर, अपनिस्टिक सेंटर और रिदमिक सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार आप बता सकते हो। फिर आपके पास में एक डायग्राम और दिया है, मैं इसको यूं बता रहा हूं कि सपोज करो हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है यहाँ पर,
यहाँ पर इस सेंटर को बना सकता हूं। इस ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जो इस पार्ट को हम कहेंगे यहाँ पर पोन्स पार्ट कहेंगे। देन सेकंड जो रीजन है इसको हम कहेंगे यहाँ पर मेडुला रीजन। इस बात को हम इस टॉपिक को इस लाइन को इस प्रकार से समझ सकते हैं। द हाइंड ब्रेन हैव three region. First region is pons, second region is medulla, and third region is also known as cerebellum. अब ब्रीदिंग में सेरिबेलम का कोई योगदान नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। सेरिबेलम है हमारे अंदर बैलेंस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो पोन्स रीजन देखिएगा यहाँ पर है। इस पोन्स रीजन के अंदर दो सेंटर है, एक सेंटर ये है और एक सेंटर ये है। अपर साइड में जो सेंटर है इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहेंगे इसे। और लोअर साइड में जो सेंटर है इसे हम कहेंगे एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर के नाम से जानेंगे। यहाँ सेकंड पार्ट है मेडुला। मेडुला के अंदर भी यहाँ पर देखिए एक डोर्सल रीजन के अंदर है, एक वेंट्रल रीजन है। यहाँ टू टाइप के, तो एक रीजन को हम कहेंगे यहाँ VRG कहेंगे, एक रीजन को हम कहेंगे DRG कहेंगे। ये तो ये बच्चों यहाँ पर एक ब्रेन के अंदर पोजीशन है, हमारे सेंटर की पोजीशन है। इसके बाद में आप देखो कि यहाँ से न्यूरॉन निकलते हैं और ये न्यूरॉन हमारी मसल्स के साथ में इस प्रकार से ये न्यूरॉन निकलते हैं, इस प्रकार से ये न्यूरॉन निकलते हैं। तो न्यूरॉन की कुछ ब्रांचेस तो आती है यहाँ पर किसके पास में, यहाँ इंटरकोस्टल मसल्स है। ये हम मसल्स बना सकता हूँ यहाँ पर, तो इसको कहेंगे हम इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स टू टाइप की है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स AICM और एक IICM। दूसरी प्रकार की जो ब्रांचेज है, ये ब्रांचेज आती है हमारे पास में रिब्स के अंदर या सॉरी डायफ्राम के अंदर जा रही है, तो इसे हम कहेंगे डायफ्राम। डायफ्राम को कंट्रोल कर रही है यहाँ। तो इस प्रकार से एक कंट्रोलिंग करने के लिए एक डायग्राम बच्चों, डायग्राम के द्वारा हम समझा सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको न्यूमोटैक्सिक सेंटर या एपन्यूस्टिक सेंटर, जिसे पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप PRG के नाम से भी जानते हैं, पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप और PRG, ये यहाँ पर देख सकते हो कि ये सेंटर है और ये सेंटर है। इसके बाद में ये दोनों मैसेज किसको देते हैं, डोर्सल है DRG को देते हैं। यहाँ DRG का मीनिंग यहाँ पर इंस्पायरेटरी सेंटर, इंस्पायरेटरी सेंटर IC, और VRG का मीनिंग एक्सपायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर इसका मीनिंग EC। अब दोनों से जो न्यूरॉन निकलते हैं, कुछ न्यूरॉन कहां जा रहे हैं, यहाँ पर डायफ्राम के अंदर जा रहे हैं, कुछ न्यूरॉन यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उसमें जा रही हैं। फिर देखिए यहाँ पर इंटरनल कुछ न्यूरॉन है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स पर, कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स है लाइक एब्डोमिनल मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, वहां पर एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर बच्चों आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से DRG, VRG या मेडुलरी रिदमिक सेंटर, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, मेडुलरी रिदमिक सेंटर कहेंगे। यहाँ अब देखिए यहां से हम यहाँ कंट्रोल करते हैं ब्रीदिंग। जब बच्चों आप देखिएगा इंस्पायरेशन जो हो रहा है, ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल हो रही है, जब इंस्पायरेशन होता है तो ध्यान रखें ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक और स्लाइड या इसी में मैं यहाँ बताना चाहूंगा। इंस्पायरेशन की घटना जब होती है, इंस्पायरेशन की घटना घटित होगी, इवेंट होगा, तो इसमें 2 सेकंड का टाइम लगता है। जब 2 सेकंड का टाइम लगता है तो उसमें यहाँ पर DRG एक्टिवेट होंगे यहाँ, और DRG जैसे ही एक्टिवेट हो रहे हैं तो ये मैसेज देंगे यहाँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, और यहाँ पर दूसरा डायफ्राम को यहाँ मैसेज देंगे। तो मैं यहाँ इस चीज को एक और स्लाइड के द्वारा यहाँ पर ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए एक स्लाइड के द्वारा बता सकता हूं कि ब्रीदिंग रेगुलेशन किस प्रकार से होता है। ब्रीदिंग रेगुलेशन है, उसके लिए व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व फॉर द ब्रीदिंग रेगुलेशन है। तो अब यहाँ पर मैंने कहा था बच्चों की यहाँ पर 2 सेंटर है, इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यहाँ एक है DRG, यहाँ पर है
VRG, इसको हम कहेंगे DRG। ओके, यहां पर हमने एपन्यूस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर, यहाँ न्यूमोटैक्सिक और यहाँ एपन्यूस्टिक, ये सेंटर थे। ये मैसेज भी इसको भेजते हैं और ये मैसेज भी इसको भेजते हैं। अब यहाँ क्या होता है, देखो यहां डीआरजी को इंस्पायरेटरी सेंटर भी कहेंगे और वीआरजी को एक्सपायरेटरी सेंटर भी कहेंगे यहां। अब बच्चों आप देखिएगा, जैसे ही हम फास्ट रन कर रहे हैं तो हमें ब्रीदिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ब्रीदिंग जब होता है तो दो इवेंट होते हैं यहां पर ब्रीदिंग में। एक इवेंट को हम कहेंगे इंस्पायरेशन कहेंगे, दूसरे इवेंट को हम कहेंगे एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में 2 सेकंड का टाइम लगता है और एक्सपायरेशन में 3 सेकंड का टाइम लगता है। अब आप देखिए बच्चों, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एरिया है उस एरिया को हम कहेंगे मेडुलरी रिदमिक सेंटर कहेंगे। जो ये पूरा का पूरा एरिया है, इस एरिया को मेडुलरी रिदमिक सेंटर। मेडुलरी रिदमिक सेंटर हैव 2 टाइप ऑफ सेंटर, DRG एंड VRG। मैंने कहा पूरी की पूरी ब्रीदिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सेंटर है वो DRG है, और DRG ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी इंस्पायरेटरी सेंटर। DRG यहां जब व्हेन एक्टिवेट होता है, व्हेन एक्टिवेट ऑफ द DRG ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो ये एक्टिवेट होगा तो इसकी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो 2 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा। और यहां से ये मैसेज किसको भेजता है, एक मैसेज तो भेजता है रिब्स को और दूसरा मैसेज भेजता है, यहां पर सेंड करता है डायफ्राम को। 2 एरिया में रिब्स है, रिब्स के अंदर है 2 टाइप की मसल्स है। यहां पर इसे अब एक मसल्स को कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द फर्स्ट मैसेज सेंड टू डायफ्राम एंड EICM, then diaphragm and EICM will contract, so the diaphragm, dome shaped diaphragm change into the flat diaphragm and anterior posterior axis volume of thoracic cavity will increase. During EIC contraction, the volume of thoracic cavity, dorsal ventral volume will be increased during EIC contraction. Then the pressure on the lungs are decreased, so environmental air rushes into the lungs. ये हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, ये काम कितने टाइम के लिए होता है बच्चों, तो ये यहाँ 2 सेकंड के लिए ये टाइम होता है। 2 सेकंड ये कॉन्ट्रैक्शन होगा सेंटर, तो यहाँ पर सिग्नल सेंड किया जाएगा EICM को और डायफ्राम को, जिससे यहाँ पर क्या होगा, इंस्पायरेशन की घटना, इंस्पायरेशन की रिएक्शन है वो कंप्लीट हो पाएगी। देन जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या होती है यहाँ पर, रिलैक्सेशन इन द DRG और IC और इंस्पायरेटरी सेंटर। अब जैसे रिलैक्सेशन होगा तो कितने टाइम के लिए होगा, तो रिलैक्सेशन यहाँ पर 3 सेकंड के लिए रिलैक्सेशन होता है। अब रिलैक्सेशन होगा तो देखिए बच्चों कि EICM और रेडियल मसल्स ऑफ द डायफ्राम है, उसमें रिलैक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें वी कैन से कि रेडियल मसल्स एंड EICM विल बी रिलैक्स हो जाएगी। देन the thoracic cavity volume will be decreased anterior posterior axis as well as dorsal ventral axis। तो ये यहाँ पर जैसे ही डिक्रीज होगा तो प्रेशर ऑन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विल बी इंक्रीज। हाउ मेनी इंक्रीज, 1 to 3 mm Hg pressure will be increased on the lungs. Then the air
from the lungs rushes outside of the body, outside of the environment। तो इस घटना को, इस इवेंट को हम कहेंगे यहाँ पर एक्सपायरेशन की घटना कहेंगे। यहाँ तो यहाँ क्या हुआ, एक्सपायरेशन हुआ यहाँ। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, एक्सपायरेशन कहलाती है। तो बोथ आर कंट्रोल बाय द डीआरजी। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कौन कंट्रोल कर रहा है, डीआरजी के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जब फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है, ध्यान रखिए बच्चों, जब फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है तो फोर्सफुल ब्रीदिंग और इंस्पायरेशन बोथ आर एक्टिव प्रोसेस। ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग IICM एंड abdominal muscles both are contract due to the signal come into the IICM and abdominal muscles। यहाँ तेजी से यहाँ पर फोर्सफुल ब्रीदिंग होगी। जब एक्सपायरेशन करेंगे तो यहाँ दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर है वो लंग्स पर लगेगा, जिससे अंदर जितनी भी एयर है वो यहाँ पर कम आउट आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द एनवायरमेंट है। तो इसमें ये IICM काम कर रही है, अदरवाइज IICM का कोई यहाँ विशेष फंक्शन नहीं होता है। और डीआरजी को रेगुलेट करने के लिए, यहां पर मेंटेन करने के लिए, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एपनिस्टिक सेंटर और न्यूमोसेंट्रिक सेंटर है। अब नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम ये सिग्नल इंस्पायरेटरी सेंटर को देते हैं कि ब्रीदिंग अब नॉर्मल हो गई है, इसे कृपया करके प्लीज इसे रोका जाए, रेगुलेट किया जाए, मेंटेन किया जाए, अदरवाइज पर्सन की डेथ हो सकती है। उस समय इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को मेंटेन किया जाता है। कब, जब अब नॉर्मल हो जाती है। तो इसमें कौन काम करता है, यहाँ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपनिस्टिक सेंटर है, जो पोन्स भाग में, पोन्स पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये पार्ट कौन सा है, पोन्स पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, यहाँ पर मेडुला पार्ट प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग। तो मैं जहां तक समझता हूं बच्चों ये बात बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आ गई है। अब आगे चले हम यहाँ, देन नेक्स्ट इज द सिग्नल। अब इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। द सिग्नल फ्रॉम द न्यूरॉन जनरेट द बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम। The nervous signal released from the group is transmitted to the diaphragm and EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन है, यहाँ नीट के अंदर ये क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है कि EICM और डायफ्राम है वो कब कार्य करती है, कब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन है। या यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंस्पायरेशन के टाइम में विच टाइप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। तो डायफ्राम मसल्स, डायफ्राम मसल्स को हम कहेंगे रेडियल मसल्स, ऑल्सो नोन एज phrenic muscles and EICM both are contract during the inspiration। ये यहाँ कह सकते हैं। and during expiration both are relaxed condition। then the ventral respiratory group of the neuron are located anterolateral to the dorsal respiratory ग्रुप। ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है यहाँ पर कि वेंट्रल जो ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो डोर्सल ग्रुप के एंटीरियर लेटरल भाग में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन दिस रिमेन इनएक्टिव एंड इवन डज नॉट प्ले एनी रोल। कौन, यहाँ VRG ड्यूरिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, कोई इसका रोल नहीं होता है। In the enhanced respiratory drive, the respiratory signal of the group contribute to the fulfill the demand by the regulation both inspiration and expiration। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई है। Few of the neuron of this group control inspiration while few other control expiration, thus regulating both। The pneumotaxic center is located dorsal in the upper pons। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये पोन्स है, पोन्स के भी यहाँ डोर्सल रीजन में, अपर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। द ट्रांसमिट सिग्नल टू द इंस्पायरेटरी एरिया, ये अपना सिग्नल किसको देता है, इंस्पायरेटरी सेंटर को या इंस्पायरेटरी एरिया को यहाँ पर ट्रांसमिशन करता है। प्राइमरली इट कंट्रोल द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ द inspiration when this signal is strong high frequency
the inspiration lasts for a shorter duration and lungs are filled partially. Then हम कह सकते हैं ड्यूरिंग वीक न्यूमोटैक्सिक सेंटर या न्यूमोटैक्सिक सिग्नल इंस्पायरेशन लास्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन रिजल्टिंग इनटू कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स। तो यहाँ न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पायरेशन को सिग्नल देता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है तो शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, और यहाँ पर वीक सिग्नल देता है तो यहाँ पर लंग्स है वो एयर से फुल फिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं द स्ट्रॉन्ग सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी कोज इंक्रीज रेट ऑफ द ब्रीदिंग बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन इज वेल एज एक्सपायरेशन इज शॉर्टन्ड। कई बार बने इस प्रकार से इसका मीनिंग अपन तेजी से दौड़ के आए हैं और उस समय हमारे अंदर है कौन इसको रेस्पिरेशन दे रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है इंस्पायरेटरी सेंटर को रेगुलेट कर रहा है और वो तुरंत कहता है कि ये तेजी से ब्रीथ किया जाए जिससे हमारे अंदर जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर पहुंच सके। तो इस प्रकार का वो सिग्नल है वो हेल्पफुल है। द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन cause increase the strength of inspiration as well as expiratory signal. However, the oxygen has no such direct effect. इसका मीनिंग ऑक्सीजन इज ए इनसिग्निफिकेंट फॉर दी ब्रीदिंग रेगुलेशन, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। इसका बहुत बड़ा कोई रोल नहीं होता है। ये क्वेश्चन है नीट के अंदर पूछा जा सकता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गैस का रेगुलेटरी रेगुलेशन में है वो यहाँ कोई योगदान नहीं होता है, तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम एक वर्ड और कहते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट डू यू मीन अबाउट द हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क? द हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स some type of special receptor are found in the terminal bronchiole and the atria or alveoli, wall of the alveoli. That type of receptor known as stretch receptor. The stretch receptor are normally inactive, but they become active when the lungs are excessive inflated due to the failure of the switch of inspiration. तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि सम स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर, यहाँ बच्चों ध्यान रखें, मैं इसको क्या समझा सकता हूं कि यहां अपने पास में मेडुलरी एरिया है, ये अपने यहां पर लंग्स है, इस प्रकार से मैं यहां लंग्स बना सकता हूं। यहां पर वीआरजी है और डीआरजी है। ये अपने पास में एल्यूलाई है, एल्यूलाई की वॉल पर यहाँ पर स्पेशल रिसेप्टर है और कुछ रिसेप्टर है यहाँ पर टर्मिनल ब्रेंकियोल पर। इस रिसेप्टर को हम कहेंगे स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर, और ये यहाँ पर कंट्रोल है या इस प्रकार से एक न्यूरॉन से कनेक्टेड है। जब यहां पर एयर आ रही है, वेयर कम इनटू दी लंग्स, देन द लंग्स आर वेल इन्फ्लेटेड, फिल अप बाय द एयर, तो कंप्लीट यहां फिल अप हो जाएंगे। तो इस वाल के अंदर स्ट्रेचिंग होगी या लगातार एयर एंटर करती जाएगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन है, तो ये यहाँ पर स्ट्रेचिंग होगी तो सम स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड, एक्टिव, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच रिसेप्टर, एंड they produce special type of signal. That type of signal travels by the neuron into the medullary rhythmic region, medullary rhythmic area. तो यहाँ पर ये यहाँ आदेश देंगे किसको, इंस्पायरेटरी सेंटर को, यहाँ पर ऑर्डर देंगे कि इंस्पायरेशन की क्रिया को बंद किया जाए और ये जो स्विच ऑफ होगी तो यहाँ ऑक्सीजन आना, अंदर एयर लेना है वो बंद हो जाएगा, और ये एयर लेना बंद होगा तो क्या है यहाँ पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो यहाँ नॉर्मल होंगे, और नॉर्मल होंगे तो अपने लंग्स को ब्रस्ट होने से यहाँ बचाते हैं, रोकते हैं।
तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्स डेवलप होता है, इस रिफ्लेक्स को हम हेरिंग बुअर रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर ऑल्सो नोन एज हेरिंग ब्रूअर रिसेप्टर, दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स नोन एज हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। तो इस टाइप से हम यहाँ इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स इन दी वॉल ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड एट्रिया स्ट्रेच रिसेप्टर आर प्रेजेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि वेयर इज प्रेजेंट ऑफ द स्ट्रेच रिसेप्टर। तो हम यहां पर देख सकते हैं, वी कैन सी द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑल्सो फाउंड इन टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड द एट्रिया or wall of the alveoli, which are normally inactive during normal breathing. They are inactive, but they become active when the lungs are excessive inflated due to failure of switch off of inspiration. Then the Hering-Brewer reflex arc now become activated and send inhibitory signal to the inspiratory center to switch off inspiration. This prevent the alveoli from the overstretching and bursting. तो यहां से बच्चों क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया जा सकता है। द एग्जामिनर कैन बी फ्रेम दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ। तो ये एक अडेप्टेशन है हमारे अंदर, हेरिंग ब्रूअर रिसेप्टर फाउंड इन दी लंग्स, वॉल ऑफ द लंग्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एट्रिया और एल्यूलाई, यहाँ ये प्रेजेंट होती हैं। और इट इज अडेप्टेशन फॉर आवर लाइफ है। अडेप्टेशन कैसे है ये एल्यूलाई की ओवर जो है वो स्ट्रेचिंग और उसकी ब्रिस्टिंग से प्रिवेंट कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ये क्या है हमारे अंदर वो एक अडेप्टेशन है। और जैसे ही ये रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा तो इंस्पायरेटरी सेंटर को कंटिन्यू यहाँ पर सिग्नल सेंड कर रहा है कि यहाँ पर इंस्पायरेशन को स्लो किया जाए, अदरवाइज यहाँ पर अपनी जो लंग्स वाल है वो ब्रस्ट हो जाएगी। तो इस टाइप के रिफ्लेक्स को दैट इज कॉल्ड हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। तो ये भी यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ फ्रेम किया जा सकता है कि हमारी जो एल्यूलाई है उसकी जो स्ट्रेचिंग और ब्रस्टिंग को प्रिवेंट वो विच टाइप ऑफ रिसेप्टर है वो करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर हेरिंग ब्रूअर रिसेप्टर और हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है, वो हमारे लंग्स को प्रिवेंट कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन से। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। दस द हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वर्क ओनली व्हेन नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ स्विच ऑफ inspiration does not work timely due to any reason। तो इस समय ये फंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये बात समझ में आई होगी। देन द केमिकल रेगुलेशन, व्हाट डू यू मीन अबाउट द केमिकल रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग? द chemoreceptors, some special type of chemoreceptors in two location monitor level of carbon dioxide and hydrogen ion and also oxygen. The mainly is carbon dioxide and hydrogen ion and provide input to the respiratory center. Input to the respiratory center. There are two type of chemoreceptor. First is a central chemoreceptor. Second is a peripheral chemoreceptor. The central chemoreceptor is found in the medullary region. मेडुलरी रिदमिक सेंटर, मेडुलरी रिदमिक सेंटर नियर द मेडुलरी रिदमिक सेंटर है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। और पेरिफेरी केमोरिसेप्टर फाउंड इन दी एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी, एओर्टिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी। ये बच्चों कैसे यहाँ पर रेगुलेट करता है, तो देखिएगा हम इसे वन बाय वन यहाँ पर बात करेंगे। द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कैसे कहां प्रेजेंट होता है, तो इसको हम एक स्लाइड के द्वारा यहाँ बात करें कि फर्स्ट हम कहेंगे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर
कीमो रिसेप्टर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कीमो रिसेप्टर है वो सेंसिटिव किसके लिए होते हैं? हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, इसके लिए यहाँ सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पर ब्रेन के अंदर हम देखते हैं, ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर ये पोन्स है और ये मेडुला है। यहाँ पर सेंटर है, ये डीआरजी है और ये बीआरजी है। ये जो एरिया है बच्चों, इस एरिया को हम कहेंगे मेडुलरी रिदमिक सेंटर एमआरसी। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब यहां से जैसे ये सेंसिटिव टू दी हाइड्रोजन आयन और सेंसिटिव टू दी कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और ब्लड के द्वारा जब यहां से पास आउट होती है, ये ब्लड यहां से पास आउट होता है, तो यहां सम स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर फाउंड इन दी मेडुलरी रीजन, दैट इज कॉल्ड कीमो रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड कीमो रिसेप्टर। व्हाट टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। तो यहां जैसे ब्लड यहां से पास आउट होगा तो ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर यहां डिटेक्ट कर लेंगे कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, उसका लेवल बॉडी में फिक्स है या इसका लेवल है या मोर देन जो नॉर्मल लेवल है उससे ज्यादा है, ये डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ही यहां से ऐसा पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन है वो यहां से इंक्रीज है, अपने बॉडी में इंक्रीज है, तो इंस्पायरेटरी सेंटर को ब्रीदिंग के लिए यहाँ आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि ब्रीदिंग है वो ज्यादा से ज्यादा की जाए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड है वो तुरंत बाहर निकाली जाए। तो बॉडी के अंदर हायर लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हायर लेवल ऑफ द हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए ब्रेन का मेडुलरी के रीजन के चारों तरफ जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन रिसेप्टर को हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर, और वो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से वो डिटेक्ट करके ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। तो ऐसे सेंटर को हम कहेंगे कि यहाँ सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है। दूसरे टाइप का रिसेप्टर है, इसे बच्चों हम कहेंगे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है? तो हमने हार्ट के अंदर पढ़ा था, हार्ट के अंदर हमने स्टडी की थी कि यहां जो एओर्टा है, इस एओर्टा में 3 प्रकार का एओर्टा यहां पर होता है। एक एओर्टा को हम कहेंगे असेंडिंग एओर्टा, एक एओर्टा को हम कहेंगे डिसेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा दोनों यहां से जुड़े रहते हैं, इसे कहेंगे आर्क ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा। अब जो यहां पर देखिए आर्च ऑफ एओर्टा जो पार्ट है, इस पार्ट में यहां पर कुछ रिसेप्टर डिटेक्ट करने के लिए कुछ रिसेप्टर यहां पर प्रेजेंट है। आर्क ऑफ एओर्टा है, यहां पर एओर्टिक आर्क हम कह सकते हैं। तो ये जो रिसेप्टर है इसे हम कहेंगे कीमो रिसेप्टर। यहां पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है। देन आर्क ऑफ एओर्टा है, यहां से एक ब्रांच निकलती है, यहां से 3 ब्रांच निकलती है, मैं एक ब्रांच की बात कर रहा हूं। ये ब्रांच फिर यहां पर डिवाइड होती है, इस प्रकार से ये डिवाइड होती है। जहां डिवाइडेशन ऑफ द बाइफरकेशन ऑफ द आर्क है, इस एरिया में बच्चों देखिएगा यहां पर कुछ स्पेशल प्रकार के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये आर्क क्या कहलाता है? यहां पर इसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी कहेंगे। यहां जो रिसेप्टर है इस रिसेप्टर को हम कहेंगे कीमो रिसेप्टर है। अब जैसे ही हार्ट से ब्लड रिमूव होगा, एग्जिट होगा, प्योर ब्लड है, तो ये ब्लड इस प्रकार से असेंडिंग एओर्टा, ये असेंडिंग एओर्टा से यहां पर आर्क ऑफ एओर्टा के अंदर जा रहा है, और आर्क ऑफ एओर्टा से यहां पर डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर। जिसे यहां से पास आउट होगा तो ये ब्लड को डिटेक्ट करेगा
कीमो रिसेप्टर आर्क ऑफ एओर्टा के जो कीमो रिसेप्टर्स है ये द ब्लड है वो डिटेक्ट कर रहा है, या क्या डिटेक्ट कर रहा है, तो ये ब्लड को डिटेक्ट कर रहा है कि कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इसमें ज्यादा तो नहीं है, कहीं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो यहाँ पर ज्यादा तो नहीं है, तो कंटिन्यूस यहाँ पर concentration of the hydrogen ion or concentration of the carbon dioxide detected by the arc of the aorta, and some blood come into the carotid artery. When the carotid artery bifurcate and form two type of carotid artery. The carotid artery bifurcation पहले से space have also some special type of chemoreceptor है, तो यहाँ पर भी chemoreceptor होते हैं. जैसे ब्लड है, some blood pass out from the carotid artery from the near the chemoreceptors. That type of chemoreceptor also detect the level of the hydrogen ion or level of the carbon dioxide concentration in the blood. When the carbon dioxide and hydrogen ions are higher in the blood, that will be a special type of signal develop, and that type of signal reaches near the inspiratory center or medullary region by the neuron. What type of neuron? That two type of neuron connect of the chemoreceptor like arc of aorta and carotid artery. From the carotid artery, the neuron connect with the brain. This is called glossopharyngeal neuron, and in the arc of aorta the chemoreceptor connect with the vagus neuron. तो यहाँ पर टू टाइप के न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है, ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरॉन और वेगस न्यूरॉन ही है, जो सिग्नल को इंस्पायरेटरी सेंटर के पास में सेंड करते हैं और या डिटेक्ट करके बताते हैं कि भाई ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो कम हो गई है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अधिक हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर भी ज्यादा हो गया है, इसलिए तुरंत क्या इंस्पायरेशन किया जाए, अदरवाइज बॉडी है वो एस्फेक्सिया और एपनोइया के तहत है वो डेथ हो जाएगी यहाँ पर. तो इस प्रकार का रिएक्शन, इस प्रकार की इवेंट यहाँ पर होता है. तो ऐसा कंट्रोल हम कहते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग कहेंगे यहाँ. तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और मैकेनिज्म. व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म? द केमिकल ब्रीदिंग कंट्रोल और कीमोरिसेप्टर ब्रीदिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है वो हम कह सकते हैं ये. तो इस टाइप से आपके यहाँ पर बच्चों समझ में आया होगा. अब हम यहाँ पर देखें पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर क्या है या तो देखिए, दीज आर लोकेटेड इन दी एओर्टिक बॉडी और लोकेटेड इन दी वॉल ऑफ द आर्क ऑफ एओर्टा. एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी. एओर्टिक बॉडी फाउंड इन द आर्क ऑफ एओर्टा, दैट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉडी दैट detect of the hydrogen ion concentration and carbon dioxide concentration. Then second is a carotid body in the wall of the left and right common carotid artery. तो यहाँ ये प्रेजेंट होती है. इस बात को हम बच्चों समझ चुके हैं. देन ये एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम आपके सामने बनाया गया है, वेरी ब्यूटीफुल यहाँ पर डायग्राम है. इसके अंदर ये एक आर्क ऑफ एओर्टा है जिसके अंदर ये बॉडी है. इस बॉडी को हम कहेंगे यहाँ पर एओर्टिक बॉडी कहेंगे. ये एओर्टिक बॉडी है डिटेक्ट कर रही है और यहाँ पर एक न्यूरॉन है, इसे कहेंगे वेगस न्यूरॉन कहेंगे. ये वेगस न्यूरॉन है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करके यहाँ ब्रेन के मेडुला रीजन में भेजता है. और दूसरा यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी है जो यहाँ कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट है. ये कैरोटिड बॉडी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो यहाँ डिटेक्ट करता है और ये फिर मेडुला रीजन को सेंड करके और हमारे जो ब्रीदिंग है उसको रेगुलेट करता है, हमारी लाइफ को ये सेव करता है. इस प्रकार से हम यहाँ बता सकते हैं दीज आर सेंसिटिव टू चेंज इन दी हाइड्रोजन आयन एंड या कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, बट यहाँ लिस्ट वो प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन है वो भी इसमें हेल्पफुल है. देन अब इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि ये यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होते हैं.
तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की हम बात करें तो फर्स्ट जो ब्रोंकाइटिस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है नीट के अंदर। व्हाट डू यू मीन अबाउट द ब्रोंकाइटिस? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द हाइपरट्रोफी ऑफ द म्यूकस ग्लैंड एंड गॉबलेट्स लाइनिंग दी ब्रोंकाई। तो इन्फ्लेमेशन मान लो ये बच्चों यहाँ ब्रोंकाई है और इसके अंदर किसी प्रकार की ये इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी रीजन के कारण है, तो इससे यहाँ पेनफुल ब्रीदिंग यहाँ पर होती है, ब्रीदिंग जो होती है पेनफुल होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस डिजीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है। देन द सिम्टम इज रेगुलर कफिंग। इससे क्या होगा, क्या सिम्टम आएगा? रेगुलर कफिंग विद थिक ग्रीनिश येलो स्पुटम दैट इंडिकेट द अंडरलाइनिंग इन्फेक्शन रिजल्टिंग इनटू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों यहाँ पर फ्रेम किया जाता है। ड्यूरिंग ब्रोंकाइटिस एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस, ये यहाँ पर रहता है। It may also be caused by the cigarette smoking and exposure to the air pollutant like carbon monoxide. What is the cause of the bronchitis? So most cause of the bronchitis, the cigarette smoking person and the air pollutant air breathe, दैट इज कॉज ऑफ द ब्रोंकाइटिस। और इसमें हम क्या कहेंगे, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस है। तो अपनी जो म्यूकस सेल है वो म्यूकस ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सीक्रेट करेगी। देन सेकंड इज द ब्रोंकियल अस्थमा। व्हाट डू मीन अबाउट द अस्थमा? अस्थमा इज ए कॉमन डिजीज इन द मेनी पर्सन लाइक यंग बेबी एंड टू द ओल्ड पर्संस है, किसी के अंदर भी ये हो सकता है। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द स्पाज्म ऑफ द स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स की जो मसल्स होती है, यहाँ ये मान लो ब्रोंकियोल्स है, इसकी मसल्स है, इसके अंदर स्पाज्म हो जाता है। यहाँ पर ये मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, इसके अंदर स्पाज्म हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता तो ठीक तरीके से यहाँ पर ये मूवमेंट नहीं कर पाती है, जिसके कारण यहाँ पर ब्रीदिंग है वो शॉर्ट ब्रीदिंग होगी है, और ऐसे लगता है जैसे अभी डेथ होने वाली है, सफोकेशन शुरू हो जाता है। तो इस टाइप की इवेंट को हम कहते हैं अस्थमा कहते हैं, या इट इज जनरली कॉज्ड ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रोंकियोल टू द foreign substances present in the air passing through it. The symptom of the disease may be coughing or difficulty in the breathing, mainly during the expiration. जब हम श्वास बाहर निकालते हैं उस समय क्या है, हमारे अंदर कठिनाई होती है, डिफिकल्टी होती है, तो दैट इज कॉल्ड अस्थमा। Then the mucous membrane on the wall of the air passage starts secreting excess amount of the mucus which may clog the bronchi as well as the bronchioles. कई बार ये इसकी म्यूकस के कारण यहाँ से ये बंद हो जाती है, और बंद होने से ब्रीद करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस समय इनहेलेटर अपन यूज करते हैं, तब जाके क्या है ये नॉर्मल कंडीशन आती है। Then next is emphysema. Emphysema, it is a very important disease. Many time the examiner ask that type of question in the NEET and the previous exam. What do you mean the emphysema? What is the cause of emphysema and what is the characteristics of the emphysema? So it is an inflation or abnormal distension of the bronchioles or alveolar sac which result into the loss of elasticity of these part. As a result, the alveolar sac remain filled with the air even after expiration, and ultimately the lung size increase. Then the reason of such a condition can be assigned to cigarette smoking and chronic bronchitis. Its treatment is also symptomatic. Bronchodilator, antibiotics and oxygen therapy are used for the emphysema. तो ये आपको बच्चों यहाँ समझ में आई होगी ये बात है। नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज। यहाँ पर कुछ ऐसी डिजीज है बच्चों जिसमें हमारे पेरेंट कई बार माइंस में काम करते हैं और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स है वो यहाँ
अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो वो डस्ट पार्टिकल या माइंस के पार्टिकल है कंटिन्यू हमारे लंग्स के अंदर है वो एंटर कर रहे हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन है, और लंग्स के एल्यूलाई के ऊपर वो डिपोजिट होते जाते हैं धीरे धीरे धीरे, वहां पर क्या फाइब्रस जैसी स्ट्रक्चर, नोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिससे क्या होगा रेस्पिरेटरी सरफेस है वो हमारे लंग्स की कम हो जाती है, और इसके कारण फ्यूजन ट्रांसफ्यूजन ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। तो ऐसे सिंड्रोम को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल सिंड्रोम, और ऐसे उन लोगों में होता है जैसे आटा चक्की में काम करने वाले लोग हैं उनमें हो जाता है, या मिट्टी की खदान है उनमें काम करने वाले लोग हैं उसमें हो जाता है, या डिफरेंट कह सकते हैं माइंस के अंदर जो काम करते हैं या सीमेंटेड जो फैक्ट्री है उसमें काम करने वाले लोगों में इस प्रकार का डिजीज हो जाती है। तो वहां जो वर्किंग प्लेस है उसके कारण जो डिजीज डेवलप हुई, लंग्स डिजीज डेवलप हुई, उसे कहेंगे ऑक्यूपेशनल डिजीज। और वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है वो भी क्या है, एक प्रकार का सीवियर लंग्स डिजीज है, जो लंग्स की एक्टिविटी को लंग्स के अंदर फाइब्रोइड बना देता है और लंग्स के सरफेस एरिया को वो कम कर देता है, जिससे यहाँ पर फ्यूजन ऑफ द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द गैसेज है, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज है वो नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये ऑक्यूपेशनल डिजीज है। इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर to potentially harmful substances such as gases, fume of the dust present in the environment where a person work. Silicosis and asbestosis are the common example which occur due to chronic exposure of the silica and asbestos dust in the mining industry. It is very important as an examiner can frame that type of question in the NEET exam कि the mines most common mines disease, most common occupational lung disease are silicosis and asbestosis are mainly discovered of the occupational syndrome to the lungs from the lungs। तो ये हम यहाँ पर बता सकते हैं इट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द फाइब्रोसिस। यहाँ ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ फ्रेम किया जाता है क्वेश्चन है कि ऑक्यूपेशनल सिंड्रोम या सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस है उसके अंदर क्या जो स्पेशल कैरेक्टर आता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मीनिंग गांठ बन जाना। हमारे जो लंग्स है इस लंग्स के अंदर इस प्रकार से छोटी छोटी गांठें बन जाता, इसको हम कहते हैं फाइब्रोइड कहेंगे। फाइब्रोइड क्यों बनता है? डिवीजन के कारण प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अपर पार्ट ऑफ द लंग्स कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, जिससे इसमें सूजन आ जाती है और ये छोटी छोटी गांठों के कारण सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं हो पाता, प्रॉपर सरफेस एरिया गैसों को नहीं मिल पाता, जिससे ब्लड के अंदर गैसेज है प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो पाती है या डिफ्यूज नहीं हो पाती है। इस टाइप का सिंड्रोम यहाँ पर है। तो ये बच्चों आप यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये हमने यहाँ पर किया और यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग और सम स्पेशल टाइप ऑफ डिजीज रिलेटेड टू द ब्रीदिंग, रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये हम यहाँ पर कर चुके हैं और आप इसे बहुत अच्छी तरह आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड और क्रिस्टल क्लियर नॉलेज, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो ये आप एक बहुत ही अच्छी योद्धा की तरह आप इस टॉपिक के लिए एक अच्छे सैनिक की तरह एक अच्छे अपन कहते हैं डिफेंस करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है एग्जाम के लिए। तो और हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।